Hello everyone, welcome to Career Launcher, and we are back with Road to NLU CLAT 2027, and this is the second session of QT, and we have already covered one session of QT and where we have seen how to solve the tricky questions and lengthy questions in lesser amount of time. So again, in this session, we are going to do the exactly same thing. Okay, so now let's start. So basically, the first question says, the first set says the National Museum in New Delhi maintains a record of visitors coming to the museum. During the year 2021, it was observed that in June, the total number of visitors are 15,000. Okay, so a lot of tricky things that I can see. Numbers are not looking very good. So let me write it down very quickly. In the month of June, the total number is 15,000. Okay. Then October, the number was 20% more. Okay. So we must have some number in July, in August, in September, in October. So in October, the number was 20% more. What is 10% of 15,000? That is 1,500. 20% is going to be 3,000. So in October, the actual number would have been 18,000. Okay. There is 12% increase in the numbers between June and August. Okay. 12%. So 10%, I know that is 1,500. 1% is 150. So 2% is 300. So 1,800 plus 15,000. So that comes out to be 16,800. And that is the number we have in August. In September, total number of visitors were 14,000 less than the previous month. So 14,000 less than the previous month. That is going to be 15,400, and this is what we are having. And what else? In the okay, whereas in July, the total number of visitors were 2,800 more than the number of visitors. Okay, so 2,800 means 17,000. Okay, 800. Among the total visitors, 18% were foreign visitors during July and August. Okay, so 18% here, 18% here. In October, there were 15,300 Indian visitors. So I would say 2,700 foreign visitors. And similarly, in the month of June, there were 11,250 Indian visitors. And remaining are going to be how much? 3,750 foreign visitors. And this is what we have. Okay. And in September, 77%, so I would say 77% were Indians and remaining 23% were foreign visitors. Okay, and this is the common information that we have considered. And this number is 18% and this number is 18%, that is foreign visitors. Okay. Hello Chavi, hello Parth. So ये जो डेटा है, ये डेटा हमने उठा लिया, ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है कि अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे क्या हम सब कैलकुलेट करेंगे, 18% कैलकुलेट करेंगे या फिर हम 77% कैलकुलेट करेंगे, 23% कैलकुलेट करेंगे, इनमें से कुछ भी कैलकुलेट करेंगे क्या? सो बेसिकली अगर मैं करूंगा तो मैं इनमें से कुछ भी कैलकुलेट नहीं करूंगा. And why I am not going to calculate anything? Because it might not be needed in the question. ठीक है. So let's look at question number 1. In November, the percentage increase in Indian and foreign visitors are 20% and 10%. ठीक है. Indian visitors are 15,300. That is 15,300 and 2,700. ठीक है. यहाँ पे 20% का इंक्रीज हुआ. So 10% is 1,530. 10% is 1,530 and 10% is 270. So basically इसको ऐड करना है, right? So basically this is going to be 3,200, 3,300.
30 got the answer. So एक आंसर आ गया. ठीक है. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 और ये बताओ कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है. पार्थ, छवि, what we are going to do in question number 2. in the exam in the exam despite knowing how to solve this question मैं नहीं करूंगा इसको, because this is one of those questions that is going to take you crazy time. Now next one, इसको अभी तो करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं इसको. इसके पहले ये देख लेते हैं. द फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर्स फ्रॉम जून टू अक्टूबर. ठीक है. जून में 3750 है, हम अभी निकाल चुके हैं. अक्टूबर 2700 है. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू से कि भाई यहाँ पे कितने का ड्रॉप आ रहा है. यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है 1050 का, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके. What is, and we are looking for a drop from June to October. So what is 10% drop? 375. What is 10% drop? That is 375. So 750 का ड्रॉप का मतलब 20% है. उसके बाद वापस से 300 का ड्रॉप है, इसका मतलब 30% से थोड़ा सा कम होना चाहिए. तो आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन सी, दैट इज 28%. वेरी नाइस. करना ही नहीं है इस क्वेश्चन को. सेकंड क्वेश्चन को तो मैं एग्जाम में नहीं करेंगे. नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. इट लुक्स वेरी लेंथी, सो मैं बाद में ही देखूंगा. उसके बाद देखते हैं. In which of the following pair of months the number of foreign visitors for a 4-digit number consisting a different combination of the same set of 4 distinct digits. ठीक है. मतलब नंबर तो सेम है, चारों डिजिट सेम है, लेकिन डिस्टिंक्ट डिजिट यूज हो रही. ठीक है. क्या मैं ये क्वेश्चन करूंगा? ये तो पक्का ही छोड़ दूंगा, क्योंकि इसमें मुझे हर जगह का मुझे एक्चुअल नंबर निकालना पड़ेगा हर मंथ का. सो ये 3 मिनट का क्वेश्चन, ये 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन है, इससे कम का नहीं है. होगा ही नहीं, क्योंकि आपको एक्चुअल नंबर चाहिए. तभी आप देखेंगे कि सेम डिजिट आपकी जंबल होके आ रही है कि नहीं आ रही. सो बेसिकली मैं देख लेता हूँ यहाँ पे. सो अक्टूबर का हमें पता है, जून का हमें पता है, जुलाई का हमें निकालना पड़ेगा. दैट इज 178 का 18% एंड 168 का 18% और इसका 23%. ठीक है. सो नंबर्स खराब हैं, सो आई कैलकुलेट एनी हाउ. 178 into 23 by 100. अब ये कैलकुलेशन जो है, ये कैलकुलेशन करने में तो वक्त लगेगा. दैट इज गोइंग टू बी, आई वुड से दैट इज 2300 प्लस no, why I'm multiplying with 23? This should be 18 na. 18 into 178. ठीक है. So 18 into 178, this comes out to be 3204. ठीक. 168 का 18% निकालना है, मतलब यहाँ से सीधे हजार का डिफरेंस आ रहा है, तो 1000 का 18% 180 माइनस कर देंगे. So that comes out to be 180 minus this comes out to be 3204 और इससे 180 माइनस कर देंगे. So this comes out to be 4, this comes out to be what 2 and this comes out to be what 0, 3024. ठीक है. So इसका मतलब जुलाई और अगस्त जो है इनका सेम डिजिट्स आ रही हैं, लेकिन बट इन डिफरेंट ऑर्डर आ रहे हैं. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी. ठीक है. समझ में आया? छवि वो नहीं निकालना था, 23% नहीं था, दैट वाज 18%. ठीक है.
अब अपन दूसरे क्वेश्चन पे आते, इस पे आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, हमें पूरा रेवेन्यू निकालना है। किस महीने का निकालना है? अगस्त का निकालना है। ठीक है, अगस्त में मुझे ये पता है कि 3024 लोग जो हैं वो अपना 250 पे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, सो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, 16800 इंटू 50। सब लोग इतना तो 50 रुपए तो दे ही रहे हैं, हाँ या ना? बाकी बचे जो 3204 लोग हैं वो 200 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हाँ या ना? एग्रीड? मुझे बस ये बताओ, क्या ये बात, ये स्टेटमेंट मैं जो बोल रहा हूँ, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? फॉरेनर्स 250 दे रहे हैं, 250 का मतलब 50 रुपए तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद 200 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्योंकि टोटल 250 पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, मैं इसकी फर्स्ट वाले की यूनिट डिजिट निकाल लेता हूँ। लास्ट 3 डिजिट होंगी 000, इसकी लास्ट 3 डिजिट होंगी 800। सो ओवरऑल जो सम बनेगा उसकी जो लास्ट 3 डिजिट्स होंगी वो 800 होंगी, एंड दैट इज देयर ओनली इन वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन। पूरा कैलकुलेशन का मुझे कोई भी सेंस नहीं समझ में आता। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का अप्रोच क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि सितंबर में 15,400 लोग हैं, 15,400 लोग हैं। ठीक है, अब जो इंडियंस हैं उसमें तो 1:1 है। ठीक है, अगर मैं सबको इंडियंस मान लूं, सबको इंडियंस ही मान लूं, ठीक है, तो ना सबको अगर मैं इंडियंस लूं, ठीक है, चलो इसमें तो निकालना ही पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ट्रिकी चीज फंस रही है, 7700 से 2 वैल्यूज ज्यादा हैं, सो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शंस आर नॉट सपोर्टिंग मी। सो 23% ऑफ 15,400, so that comes out to be 3542, and 77 comes out to be 11858. So 11858 और 3542। ठीक है यार, ये कितना गंदा क्वेश्चन है। इसका आधा कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी 5929। ठीक है, और मेल चाहिए तो मेल्स आर 4/7 ऑफ 8542। ठीक है, ओह नॉट 85, दैट इज 3542 है ना? हाँ, 3750, 506 इंटू 4, सो 506 इंटू 4 इज गोइंग टू बी 424, so that comes out to be option B.
अंडरस्टूड? छवि देखो, व्हाट वाज माय आइडिया। छवि देखो, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ कि मैं क्या सोच रहा था पहले। आई वाज लिटिल डाइसी अबाउट माय अप्रोच। देखो छवि, यहाँ पे एक बात समझना कि 15,400 टोटल लोग हैं। मैं सबको ही इंडियंस मान लेता हूँ, ठीक है? तो इसका जो आधा होगा दैट इज गोइंग टू बी 7,700 मेल्स हो जाएंगे, क्योंकि मेल्स और फीमेल का रेशियो अमंग इंडियंस इज 1:1 एंड 7,700 ही फीमेल्स हो जाएंगे। एग्रीड? यहाँ पे हम दोनों क्लियर हैं? कोई डाउट है ना? अब बात यह है कि टोटल फॉरेनर्स है वो बहुत ज्यादा तो है नहीं, 23% है ना? और उनमें भी मेल इज टू फीमेल रेशियो आपके 1:1 के पास ही है, बहुत ज्यादा है नहीं, 4:3 है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जो फॉरेनर्स, टोटल नंबर ऑफ मेल्स होने चाहिए वो 7,700 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? सो दैट गिव्स मी एन आइडिया कि मेरा आंसर 7,700 8,000 ऐसा कुछ होना चाहिए। बट द प्रॉब्लम, आई बिकेम डाइसी अबाउट माई अप्रोच, क्योंकि एक ऑप्शन मेरा 8,100 भी है। अगर वो 8,100 नहीं होता, वो 83 8,400 होता, तो मैं ये सब इतनी कैलकुलेशन है वो करता ही नहीं, मैं सीधे सीधे आंसर मार्क कर देता। गॉट इट? क्योंकि रेशियो 4:3 दैट इज क्लोज टू 1:1। सेकेंड रेशियो इज 1:1, तो अगर मैं सबको मेल ही अज्यूम कर लूं, सबको इंडियंस ही अज्यूम कर लूं, तो आधे मेल आधे फीमेल, दैट्स इट, दैट्स डन। क्लियर? So this is the approach I can think of. Again, I have told you in the previous session कि जो भी हम approximation करते हैं वो केवल एक ही चीज पे डिपेंडेंट होता है, ऑप्शंस कितने पास है। Got my point? So this is one of those sets जहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 हम बहुत ही ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस देयर इज सम कैलकुलेशन. So I would like to avoid any other question apart from first and 3. ठीक है. So अब नेक्स्ट वाला सेट उठा लेते हैं. नेक्स्ट वाला सेट क्या कह रहा है? So basically CLAT test series, if you haven't purchased the CLAT test series, this is a good time because we are offering test series in 999. So अगर आपने नहीं लिया है then you can scan the barcode and register now. Now अगले पे आते हैं. The number of candidates qualifying for admission to institution A and B for the time period in 2016 to 2021. ठीक, कैंडिडेट्स है क्वालिफाइंग फॉर एडमिशंस है, 16 से लेके 21 की बात हो रही है, सारे ही सालों की बात हो रही है. सो 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020. ठीक है, एंड 2021, 2021 की भी बात हो रही है. 17 और 18 में द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वर 4,000 ईच. चलो यहाँ पे 4,000 है, यहाँ पे भी 4,000 है, which is 500 more than that of year of 2016. So 2016 में qualified 3,500 है. ठीक है. The number of candidates qualified for institution A and B was in the ratio of 7:8. 2017 में 7:8. ठीक है. अच्छा, ये बी का है. ठीक है, ये बी का है. ए, बी और ए का रेशियो 8:7 है. सो दिस इज गोइंग टू बी 3,500. सॉरी, 2017 का 3,500 ये वाली वैल्यू आ गई. ठीक है. In 2018, the number of candidates qualified for institution A is 25% more than B. So 25% is 1,000. So I will say that is 5,000. ठीक है, इतना पता चल गया. In 2019, total
2019 total qualified are 11,900, sorry 11,500, such that the number of, अच्छा ये वाला नंबर 20% ज्यादा है, इसका मतलब 6,000 है और ये नंबर 5,500 होगा. चलो ठीक है. इन 2019 हो गया. इन 2021 द टोटल नंबर वाज 1,000 मोर देन 2019, मतलब 12,500, and such that the total number of candidates qualified for institution A are 5,000, so 6,500 और ये हो गया 6,000, दोनों में 1,000 का इंक्रीज आ गया. 2,000 the number of candidates qualifying for A and B are 4,000 and 5,000 respectively. ठीक है, इसमें तो सब कुछ ही गिवन है. And in 2016 the number of candidates qualified for half that of 2020, so that is going to be sorry, this is 5,000 and that is 2,000. ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो पूरा डेटा ही गिवन है. What is the respective ratio between the number of candidates qualified in the written test in 2016 in B to 2020 A? 3,500 is to 6,500. अच्छा 2020 है ना. B is 3,500 is to 4,000. So that so 2016 that is 3,500 and 2028 that comes out to be 4,000. So ratio comes out to be 7:8. That is option C. ठीक है ना. अगला, what is the approximate average number of candidates qualified in the written test for admission institute? अच्छा, अब मुझे एवरेज चाहिए. Again, average is not something that I would like to calculate at this point of time. In which year the total number of candidates qualified in the written test second highest. ठीक है. So second highest is something I would like to calculate. Highest तो अपन को 2021 दिख रहा है, that is 12,500. Second highest definitely 2019 क्योंकि 11,500. So answer directly comes out to be that is 2019. What is the difference between total number of candidates qualified in the written test in 2020 for A and B to Institute A in 2017? ठीक है. So यहाँ पे 5,000 plus 4,000 in 2020 it is 9,000 and it is 3,500. So answer comes out to be 55. ये तो बहुत ही आसान था. And what is the total number of candidates that qualified the written test for admission in Institute A? अच्छा, अब A का सम निकालना है. सो A का सम कितना आएगा? A का सम निकालना, that is going to be 6,500 plus 3,500 comes out to be 10,000, 20,000, 27,000. Option B. What is the average of B? B का मतलब कितने की बात कर रहे हैं? 6 साल की बात कर रहे हैं. And it is going to be what? This and this comes out to be 9,000, 19,000, 19 and 9, 28,000. ठीक है. 28,000 by 6 and that is the answer. 6 4s are 24, 40, 6 6 are 36. So answer should be option D, that is 4,600 something.
CLAT aspirant, uh, let's do one thing. Let me pick that set in the next session. ठीक है, मैं आई विल पिक दैट सेट इन नेक्स्ट सेशन इटसेल्फ. सो अगले सेशन में एक बार वो सेट पिक करते हैं और उसमें वो सॉल्व करते हैं. अंडरस्टूड? So basically, I have already solved that set long back, but I don't remember exactly what it is. लेकिन सॉल्व किया हुआ है तो याद तो है ही, लेकिन पूरा याद नहीं है. सो आई डोंट हैव दैट सेट विद मी राइट नाउ. So, but anyhow, just can you do one thing? Uh, can you drop a comment in the in the comment section on Thursday, so that I remember that I need to pick that set for the Friday session. Can you do this? So मैं फ्राइडे को वो वाला सेट पिक करके ही ले आऊंगा. इतना कर सकते हैं? और एनी अदर सेट यू वुड लाइक मी टू पिक, तो तुम मेरे को बोल देना, पिक कर देना. विच ईयर विच सेट यू वांट, just send it to me and just drop a message in the comment box, and I'm going to pick that set in the next session. So I generally take 2 sets in one session. So हर बार जो 2 sets तुम बोलोगे वो कर लेंगे. ऐसा क्या बात है? Got it? और क्लैट वाले सेट तो थोड़े ज्यादा ही आसान होते हैं, तो फट से हो जाएंगे, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है. एनी अदर थिंग यू वांट फ्रॉम मी? Chavi, do you have a demand for any specific sets? Parth, would you like me to do any particular set that जो तुम्हें लगता है कि पिक करना चाहिए, and if there is a shortcut, we'll discuss. अगर if so with this again the freedom CL is there. So basically अगर CL के मॉक से ही अगर तुम्हें कोई सेट पिक करना है, तुम लोग मेरे को वो भी बता दो. I'll pick that set. तुम्हें लगता है ये डिफिकल्ट था, लेंथी था, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूंगा? सो इफ यू वांट यू कैन. छवि, इट्स फाइन, जस्ट मेरे को ना एक बार बता दो. छवि, इफ यू आर अ CL स्टूडेंट ना, तो मुझे मॉक नंबर बता दो और ये बता देना. और अगेन आई वुड से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना ये चीज कि ये वाले मॉक का ये वाला सेट आप पिक कर लो. आई डू. ठीक है? सो ये वो बात नहीं है. देखो, एंड अगेन रिमेंबर, एवरी सेट मैं बोलता हूँ कि कुछ हो जाएगा, लेकिन एक बात, ये बात ध्यान रखना, मैं हमेशा इस बात पे क्लियर हूँ इस बात पे कि हर सेट आपका शॉर्टकट से नहीं हो सकता. ठीक है? हर सेट में शॉर्टकट लगेगा नहीं लगेगा ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन अ लॉट ऑफ टाइम्स यू कैन पिक अप 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस बाय यूजिंग शॉर्टकट्स. 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो जाते हैं. ठीक है? 4 मिनट 5 मिनट में 3 क्वेश्चन हो गए. 5 मिनट में 3 नंबर मुझे नहीं लगता खराब स्कोर है. इट्स अ गुड स्कोर, स्पेसिफिकली इन क्यूटी. गॉट इट? So with this, let's wind up today's session. Thank you.